good morning, and it's very pleasant moment for me because oftenly when we start a speech competition, that time we spend lots of time together, and it changes from the morning to afternoon, sometime evening as well. And right now I am very happy to say that actually wishing you a very good afternoon, good morning. And since morning 8 o'clock, when the moment we started our speech competition the first time here, I know very well that it is going to be the first experience of all of you from the people they are living and they are belonging to the Balrampur. Why? Because this kind of platform, this kind of the opportunity or the scene you might have seen in your life. If I talk about the benefit, if I talk about the results, if I talk about the experience which you have gotten from the speech competition, I'll talk about that, I'll explain about that, and what would the advantage that why I have you called and just made you compelled to come here. Before giving you any kind of the explanation about today's event, first of all, I just wish all the participants best of luck, because it will be the examine day, and as well as somewhere just it will be the life-changing day for the people who have participated, and they are going to win or just they are not going to win the certificate. In my opinion, all of the students, they have participated, all the participants, they totally are winner. Because participating in any kind of the competition and coming on the stage and speaking like with that kind of the courage, that kind of the confidence, that is sufficient for me. If I talk about the education level of the Balrampur, that doesn't increase. Earlier, when in 2014, when firstly I was appointed in Balrampur to just manage the center, that time the Shravasti was the poorest educational city in the whole Uttar Pradesh. But few years ago, Shravasti developed in the matter of the education, and the Balrampur that sank. You know why? Because the people of the Balrampur, they love to invest money, they love to spend money in entertainment. If I talk about the entertainment, if I talk about the shopping in last few years, you have seen, or just you are seeing right now, lots of malls, lots of entertainment areas that have been set up in the Balrampur, and people love to go there. Near about 4 malls, 4 shopping centers, supermarkets that are open here, 3 or 4 gyms are open here. And if I talk about the culture thing, so that's not culture at all, but the singing institute, dancing institutes are being opened. But if I talk about the competitive place, if I talk about the culture and the career, and if I talk about the growing life-changing platform, there are only few of the platform, few of the institutions, few of the places where you can change your life and you can move into a new direction. I'm not going to talk about the benefit of the joining American Institute. You already have been told, and as well as daily from a word, always you get to know that why we recommend American. Being a member of American Institute, it doesn't mean that I'm going to encourage you about the joining American, encourage you about the giving the information about the American. The best thing of the American, that doesn't teach you at all, that trains, that mends your mind, that changes your thought, that changes your experience, the bitter experience which you have gotten from the city, some poor areas, and sometimes you think that you do not get the platform, you do not get the proper guidance from the poor areas. Wherever the American Institute is going on, wherever it is open, all the faculty member of American, they are sacrificing their life, they are giving their life to the students to make them develop in their field, in their career. And if I talk about the Balrampur Center, in my touch, the students, they are migrated to other people, they are working in US. And after just getting the, this kind of the platform, and as well as the event, they have felt, they have had the experience, they got in the certificate, and after that they are working. One of my students, when right now the Ukraine and Russia war is going on, he is stuck in. He was stuck before some months, and after that the war started, and it took a new image, and after that the condition got worse. Then after he came back to the India. Name is Anmol Singh. He lives in thereabout Dosa. He is one of the students, joined in 2020. He started his class here, and after that, the totally intention of joining American Institute to set up his service in Ukraine and to crack the NEET examination. Unfortunately, he switched to Ukraine and he started his education there. Somewhere, due to the bad luck, or you can say that due to the some circumstances of the global war, he has to come back. Obviously, he is going to be there. But what is the totally benefit of joining American Institute? क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं जब आप एक ऐसा संस्थान ज्वाइन करते हो जो आपके लिए पूरी तरीके से नया है?
If I talk about the American, so everybody knows, everybody sees American whenever they pass through the road, they see अंग्रेजी बोलना सीखे American. That is written there. Some of them, they get the curiosity to visit the center and to get the knowledge about the American, that what is this? Why it is open here? What is the work of American? And some of them, they ignore. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रास्ते से गुजरते हैं, मतलब ज्यादातर लोग रास्ते से गुजरते हैं, वो बोर्ड को देखते तो हैं अमेरिकन के, बोर्ड को देखते हैं, बोर्ड को देखने के बाद में बहुत उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अमेरिकन कर क्या रहा है, अमेरिकन है क्या चीज, वो देता क्या है, अमेरिकन ओपन क्यों है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, जानकारी लेते हैं, then after वो चले जाते हैं। But somewhere the words which is heard by them, that is stuck in their minds. Whenever they want to set up their career, that time they find the place and they come again to join the institute and they say, I would like to join you. क्योंकि जो बातें यहाँ पर उनको एक जानकारी के तहत मिलती है ना, उनको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे मेरी लाइफ में आगे चल करके एक ग्रोथ देगा ही देगा। And most of the people, they ignore and still they are suffering from the problem. They are wandering here and there. They have completed graduation, post-graduation, they have completed diploma, they have completed BEd, and most of them, and some of them, they have got the job and still they are suffering from the disease, that is the bugbear of the English. बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इवन जॉब कर रखी है, फिर भी अभी वो एक ऐसी बड़ी हवा से, बिल्कुल कहते हैं ना हवा है, एक बड़ा समस्या उनके लिए पड़ी बैठी हुई है, उस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और वो है इंग्लिश की प्रॉब्लम। छोटे शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है that if you speak English something means you speak tutti-frutti type of English, so people just give you the respect and you consider yourself as a नेटिव लैंग्वेज स्पीकर। अगर आपके छोटे शहरों में 2-4 लाइन को इंग्लिश बोलने लगता है तो लोग आपको मानते हैं कि आप अच्छे खासे अंग्रेज हो गए, और उसके बाद में आपको ये लगने लगता है कि आप तो बस इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज हो गए, आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत ही नहीं है। बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा अंग्रेजी सीखने की जरूरत उन्हीं बच्चों को होती है जिनके पास अंग्रेजी की जानकारी है। क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज की जानकारी है पर वो आधी है या कच्ची जानकारी है, सो दैट इज द हार्मफुल पॉइंट फॉर यू। ये आपके लिए बहुत इंजीनियस, बहुत हार्मफुल कंडीशन होती है। आपको जानकारी ना हो, आप डायरेक्टली कह सकते हो सर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। लेकिन अगर आपको जानकारी और आपने बोलना शुरू किया और गलतियां करना शुरू की तो आपको लोग जज करते हैं दैट यू आर समवेयर अ लेथार्जिक, अ केयरलेस और ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। लोग आपको मानते हैं कि आप एक बिल्कुल केयरलेस पर्सनालिटी हो, आपने अपने बारे में अपने बारे में केयर ही नहीं किया, आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि आपके जीवन में ग्रोथ कौन सी चीज देगी, और वास्तविकता में या तो फिर आप एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं, आप अपने आप को ही दुनिया में 30 मार्क समझते हैं। ये सबसे पॉसिबल कंडीशन होती है। हमें उस समय एक नया यू टर्न लेने की जरूरत पड़ती है जहां पे हम अपने लाइफ में ग्रेजुएशन को, इंटरमीडिएट को, हाई स्कूल को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन सारे रास्तों से होकर के निकालने वाली सिर्फ एक चीज है, वो है अंग्रेजी। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपको दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, किसी भी बुक को पढ़ने में, कोई भी क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके मोटो को समझ सकते हो। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द CCC एग्जामिनेशन बिकॉज़ दे आर लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। आप CCC का एग्जाम जिसने भी दिया होगा, आप में से जितने लोगों ने दिया होगा, वो सारे लोग एक कंडीशन देख रहे होंगे कि CCC के जितने भी लोग उसमें फेल होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है दे डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। उनको इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि जहां पर आपकी हिंदी में एक वर्ड आपके सामने आता है, आप उस हिंदी के वर्ड को नहीं समझते हो और उसी चीज को जैसे ही आपकी इंग्लिश में लिख दिया जाता है आप अंडरस्टैंड करते हो, क्योंकि आप मोबाइल ऑपरेट करते हो इंग्लिश में। आपको वो चीजें इंग्लिश में आती है पर हिंदी में आपको नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने कभी उसकी हिंदी ध्यान ही नहीं दी। डजंट मैटर दैट इज योर नेटिव लैंग्वेज, दैट इज योर मदर टंग, बट स्टिल आपको उस सब चीजों को समझने में प्रॉब्लम होती है। देन व्हाई यू पीपल आर नॉट मेकिंग इट परफेक्ट? आप इसको परफेक्ट क्यों नहीं बना लेते? आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि आप इस चीज को इतना एक्सपर्ट बना लो अपने आप को इस चीज में कि आपको दिक्कतें न होने पाए? आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है अरे यार आजकल तो सरकार का है हिंदी में इंटरव्यू दो, सिविल सर्विस में हिंदी में इंटरव्यू दो। सही बात है, मैं भी कहता हूँ हिंदी में इंटरव्यू होता है बहुत जगह पर। अगर आप हिंदी में, बहुत सारी वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे चलने लगी हैं, आप हिंदी को प्राथमिकता दीजिए, हिंदी को प्राथमिकता दीजिए, मैं भी कहता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको अपने घर पे एक ऐसा असिस्टेंट रखना है जिसको सिर्फ एक लैंग्वेज बोलनी आती है, वो ड्राइवर है सिर्फ गाड़ी चलाना आता है, वो कुक है सिर्फ खाना बनाना आता है, आप उसको रखेंगे या आप एक ऐसा बंदा रखेंगे जो खाना भी बना लेता है, गाड़ी भी चला लेता है और उसके साथ साथ आपके ऑफिस का भी काम कर लेता है? आप किस बंदे को रखना पसंद करोगे? अगर आप एक मैनेजर होगे तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है आपके पास एक सेकंड ऑप्शन आप चूज करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको उसी पैसे में एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मिल जा रही है। एंड यू नो व्हाट,
कि आज के समय में जितने भी बिजनेस की डील्स होती हैं, जितने भी, आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, सरकार हिंदी बोलने का कहती है, लेकिन आपको ये जान के बड़ा अचंभा होगा कि सरकार का कोई काम हिंदी में होता ही नहीं है। सरकार खुद सारे एप्लीकेशन इंग्लिश में एक्सेप्ट करती है। सरकार के आपकी कानून के जितने एप्लीकेशन होते हैं मोस्टली, आप निचली अदालत को छोड़ दीजिए, आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाइए, आप लोकसभा में चले जाइए, संसद भवन में चले जाइए, जितना भी सरकार बजट पास करती, कोई चीज करती है, ऑल आर इन इंग्लिश, क्योंकि हिंदी पूरी तरीके से हिंदुस्तान में बोली नहीं जाती। आप उस चीज से सफर कर रहे हैं जो आपको पूरी तरीके से मात्र 25% की जानकारी देती है। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग हिंदी, मैं हिंदी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, आई प्रेफर हिंदी, मैं भी हिंदी हमेशा बोलता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को परिपक्व न बनाऊं, क्योंकि आपको कब मौका मिलेगा आगे जाने का, कब आपको लाइफ में एक जैक मिल जाए और आपको फॉरेन कंट्री में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल जाए, और उस समय सपोज करिए कि आपको सब कुछ आ रहा होगा लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आ रही होगी। आप कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हैं, जब वीरेंद्र सहवाग जैसी पर्सनालिटी को अंग्रेजी सीखना पड़ा, पहले दूसरे तीसरे मैच में जब उनको कमेंट्री के लिए बुलाया गया, ही प्रेफर्ड हिंदी, लेकिन उनको भी इंग्लिश सीखनी पड़ी। उन्होंने भी अगली अपनी स्पीच इंग्लिश में दिया था जब उन्होंने मैच आउट ऑफ मैच पाया था। तो आप और हम कहां हैं? अगर हम सोशल इमेज की बात करते हैं तो आप अपने आप को कहां रखते हो, आप पहले चीज तक ध्यान दीजिए। आप किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर। आपके लिए अंग्रेजी जरूरी इस चीज के लिए है क्योंकि मोस्टली धार्मिक पुस्तकें, जो राइटर्स हैं, या आपकी सामाजिक पुस्तकें, या कोई ऐसे भी नॉवेल्स, ये सब अंग्रेजी में आजकल लिखी जा रही है। आपके लिए जरूरी है अपने आप को परिपक्व बनाना, क्योंकि आपके लाइफ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तभी आ जाता है जब आपको अंग्रेजी नहीं आती और आपको ये लगता है कि आपके अंदर एक कमी है। क्योंकि अंग्रेजी को मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि सिर्फ अंग्रेजी बोलना आपको सिखाती है, दैट प्रूव्स योर पर्सनालिटी, वो आपका व्यक्तित्व दिखाता है जो आपके अंदर छुपी हुई रहती है। आपको उस चीज को निकाल करके शाइन करने की जरूरत है जो आप में टैलेंटेड, आप में जो एक स्किल्स आपके कुदरत ने आपको दिया है, जो आपके अंदर एक गुण, जिस चीज से उसने आपको नवाज दिया है, आप उस चीज को रखते हो और मिट्टी में मिला देते हो। जब आपकी उम्र आती है, कभी निकल करके आती है, तो लोग कहते हैं यार तुम में इतना टैलेंट है, तुम क्यों छुपे हुए बैठे हो, क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि आपने अपने बारे में कभी सोचा नहीं, आपने तो बस नौकरी करने के बारे में सोचा। आप में से कितने लोग अपने आप लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचते हो, ये सोचते हो दैट आई हैव टू बी अ रोल मॉडल, मुझे लोगों के लिए एक आइडियल पर्सनालिटी बनना है। कितने लोग सोचते हो ये बात? शायद एक आदमी। कर्म कितने लोग करते हो? एक भी नहीं। जब सोचते ही एक दो लोग हो तो कर्म उसको कर पाने के लिए कितने लोग करोगे? एक, या शायद वो भी नहीं। जब आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, 20 साल की उम्र अभी हो गई है, सोचते सोचते 30 की हो जाएगी, करते करते 40 की हो जाएगी, तब तक घुटनों में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, इलाज कराओगे, अपना करियर बनाओगे। हर आदमी KFC का मालिक नहीं होता कि 67 साल की उम्र में 4 बार सुसाइड करने के बाद में, 2 बीवी छोड़ने के बाद में, बच्चे के द्वारा लात मारने के बाद में उसकी बिजनेस चल जाए और वो वर्ल्ड में 1800 जगह पे अपनी ब्रांचेस को फैला दे। हर आदमी KFC का मालिक नहीं होता। हर आदमी धीरू भाई अंबानी नहीं होता कि पेट्रोल बेच के वो आज एक दिन पेट्रोल कंपनी का, रिफाइनरी का ही मालिक बन जाएगा। ये बहुत गिने चुने नमूने होते हैं, ये बहुत गिने चुने ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन उनको बनना हमारे हाथ में है। हम आज नहीं तो कल इतिहास में लिखे जरूर जाएंगे, और उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और ये काम आपको कोई और नहीं सिखाएगा। आपको CCC की जानकारी मिल सकती है, आपको BEd की जानकारी मिल सकती है, सिविल सर्विसेज की जानकारी मिल सकती है, लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको आज तक के पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन किसने आपको बताया कि आपके अंदर ये चीज करने का गुण नहीं है, आप गलत रास्ते में जा रहे हो? That is the matter of career counseling. ये करियर काउंसलिंग का मैटर होता है। किसने आपको बताया कि आपके अंदर ये करने का गुण है, आप इस चीज के लिए बने हुए हो, आप इस डायरेक्शन में जाइए, दैट इज सूटिंग यू। ये आपकी पर्सनालिटी, आपके थॉट्स को सूट करता है। शायद ये आपको बताने वाला कोई नहीं होगा, नहीं, अभी तक कभी लाइफ में नहीं मिला होगा। डोंट वरी, हम हैं, हम उस कंडीशन में भी आपके साथ खड़े हैं जब आप जीवन में हर जगह पे थक हार करके आएंगे और आप कहेंगे सर मैंने सारी डिग्रियां ले लिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फिर आपके उस करियर को एक नया आयाम देने के लिए, एक नया डायरेक्शन देने के लिए हम तब भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना समय गुजार देते हैं। कुछ लोग आते हैं, उनके जॉब में उनकी ग्रोथ नहीं होती, इसी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और बाद में जॉब को ही प्राथमिकता दे देते हैं। अंग्रेजी को छोड़ दिया, जिस उद्देश्य से इस चीज को सीखना शुरू किया वो उद्देश्य ही भूल गए और जो काम कर रहे थे फिर वहीं वापस लौट गए। क्या ग्रोथ मिलेगी? आप अपने आप को ग्रोथ दोगे या कभी आईने के सामने आ गए और अपने आप को एक कहते अपने आप में एक महसूस करने की बात आती है तो आपको ये लगेगा कि आपने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी, फिर जीवन में झटका लगेगा और तब आपको लगेगा काश कि मैंने उस समय मेहनत किया होता। एंड लाइफ डजंट गिव यू द सेकंड चांस माय डियर, डेस्टिनी नॉक्स द डोर एट वंस इन अ लाइफ। जीवन में किस्मत एक बार दरवाजे पर दस्तक देती है, इफ यू ओपन देन यू आर किंग एंड इफ यू आर स्लीपिंग स्लीप फुल नाइट, सोते रहिए।
अगर आप सो रहे हो तो। जीवन में सफल कौन होता है जानते हो? स्मार्ट वर्कर नहीं, एक हार्ड वर्कर। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्कर जीवन में बहुत सफल होते हैं, मैं नहीं मानता। स्मार्ट वर्कर उसी तरीके से होती है जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक लिफ्ट होती है, लाइट गई स्टार्ट, और हार्ड वर्कर सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे चढ़ते रहते हैं। दे गेट द सक्सेस लेट बट श्योर। वो मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी उनको, लेट मिलेगी। वो 32 साल की उम्र में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैश करेंगे, वो 35 साल की उम्र में अगर एक जज बन जाएंगे। अगर हम बात करें, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर उनको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का, वो 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में बिजनेसमैन बनेंगे। लेकिन